Hello friends, in last lecture we have studied about Fleming's right hand rule and magnetic field produced by the current through the circular loop. So today in this lecture we are going to study about magnetic field due to the current in a solenoid. It is a very interesting topic students. Starting with the topic magnetic field due to the current in a solenoid. Friends, I have drawn the diagram from your textbook. This is a solenoid consisting of magnetic lines of force and magnetic field is produced in this solenoid. How this magnetic field is produced, I will explain you. Student, take a magnet of a north pole and the south pole. This is my north pole and this is my south pole. Now in this magnet, how the magnetic field is produced, that is important. So friends, when you have placed this north and south pole magnet and you have placed the magnetic needle, this is my magnetic needle suppose, when you will place this, the magnetic field will produced around the magnet. Okay, magnetic field will produce. But now the question arises, how in the solenoid the magnetic field is produced. Now here I have written the points. When a copper wire with a resistive coating is wounded in a chain of loop like a spring, it is called solenoid. Now first of all, in examination of 10th standard board examination, they will ask definition for 1 marks, what is solenoid. Okay, so you have to write, when a copper wire with a resistive coating is wounded in a chain of loop like a spring, it is called solenoid. When an electrical current passes through this solenoid, magnetic lines of force are produced in a pattern shown in figure. Now friends, I have explained that how the magnetic field is produced in the magnet. Now the question arises, how the magnetic field is produced in the solenoid. What is solenoid? When a copper wire with a resistive coating, the copper wire which consists of resistive coating is wounded in a chain of loop like spring. Look here, I have written with a red mark that this copper wire, it is wounded with the coating of chain, that is in the form of loop like a spring. This term is known as solenoid, which have mentioned here. The copper wire with resistive coating is wounded. Copper wire with resistive coating is wounded in a chain of loop like spring. It is called solenoid. When the electric current passes through the solenoid, when the electric current passes through the solenoid, now how the electric current will pass? When the battery will arrange, when the key will be there, then only the electrical current will pass. Now when the copper wire is coated, no, this copper wire is coated with, this copper wire consists of battery with positive terminal and the negative terminal and the key. So when I will on the key, the current will pass from the positive to the negative terminal. This you have studied. This current will pass from positive terminal to the negative terminal. So when the electric current passes through a solenoid, magnetic lines of force are produced. So how these magnetic lines of force are produced? Solenoid will form and the current will pass from the solenoid from positive terminal to the negative terminal. Due to this, what will happen? This magnetic field lines will produce. In magnet, what happens? In north and south pole magnet, when you will place the magnetic needle, so the magnetic field will produce. But in solenoid, the copper wire with resistive coating wounded in a chain of loop like a spring is called solenoid. And in that solenoid, when the electric current is passed, then only the magnetic field lines, the magnetic lines of force are produced in the pattern. Okay, so from textbook point of view, we are aware of the magnetic lines of force of a bar magnet. The properties of the magnetic field of a solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. Now friend, this is my bar magnet. What is the properties of this bar magnet? The properties of this bar magnet, the magnetic field which is produced, they does not intersect each other. वो एक दूसरे से intersect नहीं होते. ये बहुत ही important properties है, मैं यहाँ पे mention करता हूँ. First property is what? They do not intersect each other. This you have studied. So what they have told,
the magnetic lines of force of a bar magnet, the properties of the magnetic field of a solenoid. This solenoid, they are talking about this solenoid, are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. So what are the properties of this bar magnet? They do not intersect each other. यहाँ पे भी देखो ये लोग intersect नहीं कर रहे, मतलब ये दोनों का प्रॉपर्टी दोस्तों क्या है, सेम है. और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मेरा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. जो ये मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट जा रहा है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, देखो नॉर्थ से लेके साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ. यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है, ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ. नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन में ही जा रहा है. वो बार मैग्नेट में भी वही काम करता है. द करंट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन टू द साउथ डायरेक्शन. तो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. और जो फील्ड लाइन्स है वो मैक्सिमम कहाँ होते हैं, फील्ड लाइन्स are more in poles. जहाँ पे पोल्स हो गए वहाँ पे फील्ड लाइंस दोस्तों क्या होते हैं, मोर होते हैं. देखो यहाँ पे पोल्स है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पे फील्ड लाइंस देखो बहुत ज़्यादा है. ओके, सो magnetic lines of force of a bar magnet, the properties of the magnetic field of a solenoid are very similar to the magnetic field produced by a bar magnet. bar magnet का magnetic field properties दोस्तों क्या है, they do not intersect each other. field lines are more on the pole and always the current passes from the north pole to the south pole, or magnetic field line passes from the north pole to the south pole and current passes from the positive terminal to the negative terminal of this solenoid or battery. Okay, so one of the open ends of a solenoid act as a magnetic north pole. This is a north pole, and the other as the magnetic south pole. Okay, the magnetic lines of force inside the solenoids are parallel to each other. Of course, you see this magnetic field lines inside the solenoid. This is my solenoid. Inside this solenoid, the magnetic field lines are parallel to each other. दोस्तों सोलोनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ से मेरे जा रहा है साउथ से नॉर्थ की ओर, तो वो कैसा है दोस्तों, पैरेलल एक दूसरे से. द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन दिस सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म. दोस्तों जो इंटेंसिटी होता है ना सोलोनॉइड में, वो हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है. इसी का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी सोलोनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है. तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट in a solenoid. So what you will do, we will draw this diagram first. This is my magnetic lines of force. This is my solenoid. This is a south pole. This is a north pole. This solenoid is connected to the battery with positive to the negative terminal, and key is connected, and current passes from the positive terminal of a battery of solenoid to the negative terminal of a battery of solenoid. Now we will explain what is solenoid. The copper wire with resistive coating is wounded in a chain loops like a spring is called solenoid. And we will explain the second point. Whenever the electric current passes through the solenoid, magnetic lines of force are produced in a pattern shown in figure. देखो जब भी करंट पास होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो हमें क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन. जो ये सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने पहले बताया ना किस तरह प्रोड्यूस होता है, वो करंट पास होने से प्रोड्यूस होता है. करंट किस तरह पास होता है दोस्तों, पॉजिटिव टर्मिनल से लेके नेगेटिव टर्मिनल की ओर. अब क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट, the properties of the magnetic fields of a solenoid are quite similar to the properties of the bar magnet. What are the properties? The field line do not intersect each other. Field lines they do not intersect each other. यहाँ पे solenoid में भी एक दूसरे से वो intersect कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे. और field lines कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, poles की तरफ ज़्यादा होते हैं. और field lines हमेशा कहाँ से कहाँ पास होते हैं, north pole to south pole. वो important point है. And the open end of a solenoid act as a magnetic north pole and the other of the magnetic south pole. The magnetic lines of force inside the solenoid are parallel to each other. ये भी आपको दोस्तों एक्सप्लेन करना है. ओके, पैरेलल कैसे है दोस्तों, सोलोनॉइड के अंदर आपको दिख रहा है ये जो लाइंस है एक दूसरे से पैरेलल है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड within the solenoid is uniform everywhere. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलोनॉइड इज यूनिफॉर्म. दोस्तों ये जो सोलोनॉइड आपको दिख रहा है इसमें इंटेंसिटी ये हर जगह पे यूनिफॉर्म होता है. हर जगह पे क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्म होता है. उसी का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलोनॉइड भी दोस्तों यूनिफॉर्म होता है. ओके,
So we have completed with magnetic field due to the current in a solenoid. So moving on to the next topic, which is based on your activity. So friend, force acting on a current carrying conductor in the magnetic field. ये आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया गया है. So force acting on a current carrying conductor in a magnetic field. अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है जहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट प्लेस है. हॉर्सशू मैग्नेट, मैं पहले मटेरियल्स पढ़ लेता हूँ. फ्लेक्सिबल कॉपर वायर, जो आपको दोस्तों ये जो कॉपर वायर दिख रहा है ना, ये जो कॉपर वायर दोस्तों दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉपर वायर. दोस्तों ये जो कॉपर वायर है वो कौन सा है? फ्लेक्सिबल कॉपर वायर. फ्लेक्सिबल है, ये यही जो दिख रहा है आपको, यही कॉपर वायर की मैं बात कर रहा हूँ. और स्टैंड आपको दिख रहा है, और सेल, ये सेल बैटरी. एंड हॉर्सशू मैग्नेट, दिस मैग्नेट इज हॉर्सशू मैग्नेट. दोस्तों हॉर्सशू मैग्नेट मीन्स व्हाट? स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट. ओके, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज नोन एज हॉर्सशू मैग्नेट. सो और क्या है यहाँ पे? विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको बताया हॉर्सशू मैग्नेट विद अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. और प्रोसीजर क्या है? यूजिंग द स्टैंड फिक्स कॉपर वायर so that if passes through a poles of a horseshoe magnet as shown in figure and connect the circuit as well. ये कॉपर वायर है, ये हॉर्सशू मैग्नेट से पास हो रहा है और वो सर्किट से कनेक्टेड है और यहाँ पे स्टैंड रखा गया है. और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हियर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ टू दी साउथ. डायरेक्शन किस तरह है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ टू साउथ की तरफ डायरेक्शन है. देखो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है और यहाँ पे साउथ डायरेक्शन है. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोस्तों किस तरह है? नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन. द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे. और द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. दोस्तों ये पॉइंट को मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा. जब आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, मैं फिर से इस पॉइंट की तरफ आऊँगा और आपको मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन कराऊंगा. तो आपको डायग्राम समझ में आया. डायग्राम में दोस्तों क्या है? फ्लेक्सिबल कॉपर वायर जो आपको यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और स्टैंड है, इलेक्ट्रिकल सेल है, दिस इज माय इलेक्ट्रिकल सेल एंड की इज ऑल्सो प्रेजेंट, एंड हॉर्सशू मैग्नेट विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों कहाँ पे? ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया ना, यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है हॉर्सशू मैग्नेट द्वारा इस फ्लेक्सिबल कॉपर वायर में. ओके, सो इसको समझने के लिए अब आगे बढ़ते हैं. फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन दी मैग्नेटिक फील्ड. इसमें दोस्तों फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है ना. द अबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. हाउ इट्स, I will explain, and the direction of the force depends on both the direction of the current and direction of the magnetic field. ये किस तरह होता है दोस्तों, हम आगे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. ओके, सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. दोस्तों आपको दिख रहा है कॉपर वायर, कॉपर वायर, सॉरी ये कॉपर वायर है, ये नहीं मेरा, ये कॉपर वायर है दोस्तों. और ये मेरा क्या है दोस्तों? मैग्नेट है. ठीक है, ये कॉपर वायर है और ये मेरा मैग्नेट है. अब दोस्तों जब करंट पास नहीं हो रहा है, जब करंट, ये इस डायग्राम की ओर भी देखिए, इस डायग्राम में जब करंट पास नहीं हो रहा है तो कॉपर वायर मेरा कैसा है? स्ट्रेट है दोस्तों. करंट जब पास नहीं हो रहा है तब कॉपर वायर दोस्तों किस तरह है? स्ट्रेट है. देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने बैटरी और की अटैच किया है, किसमें? फ्लेक्सिबल कॉपर वायर को हॉर्सशू मैग्नेट से. अब बैटरी अटैच किया है तो इस कंडीशन ये कि यहाँ पे करंट फ्लो होने वाला है. अब फ्लो कैसे होगा? अगर मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, तो करंट, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो नेगेटिव टर्मिनल है, करंट ऊपर से नीचे आएगा. ठीक है, अगर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ये है और पॉजिटिव टर्मिनल ये है तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा करंट का, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जाएगा. तो उस कंडीशन में किस तरह हमारा डायग्राम होगा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पे देखो जब करंट पास नहीं होता, व्हेन नो करंट वाज पासिंग, नो करंट, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? स्ट्रेट है मेरा वायर. देखो अब ये जब मैं करंट ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा हूँ, जब मैं करंट ऊपर से नीचे की तरफ ला रहा हूँ, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे करंट जो वायर है, जो स्ट्रेट था वायर, वो इस तरह बेंड हो जाएगा. देखो इस तरह बेंड हो गया ये वायर, दिख रहा है? ये वायर स्ट्रेट था, जब करंट ऊपर से नीचे की ओर आया तो ये वायर कैसे ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे. अंडरस्टूड? ये वायर क्या हो गया? बेंड हो गया. अब जब मैंने टर्मिनल को चेंज कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मैंने टर्मिनल को दोस्तों चेंज कर दिया. जब मैं टर्मिनल चेंज कर रहा हूँ, मतलब
यहाँ पे नेगेटिव रख के यहाँ पे पॉजिटिव रख रहा हूँ तो करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस कंडीशन में जब करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो मैंने लिखा है व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इट रिमेन स्ट्रेट एज ए पोजिशन है, ये आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है। व्हेन ए करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इट रिमेन स्ट्रेट एट पोजिशन ए, देखो करंट फ्लो नहीं कर रहा है। सो वेन एवर करंट फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम मतलब जब यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो करता है तो इट बिकम्स पोजिशन लाइक सी, पोजिशन सी की तरह ऐसा हो जाता है। कब होगा? यहाँ पे जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होगा। वेन एवर करंट फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप वायर बेंड्स एंड कम टू द पोजिशन बी। अब जब बॉटम से टॉप, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, सॉरी नीचे से ऊपर जब करंट जा रहा है तो ये ऐसा पोजीशन दिखेगा, पोजीशन बी के बराबर। तब आपका मैंने यहाँ पे भी लिखा है टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल। करंट नीचे से ऊपर जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, करंट ऊपर से नीचे आएगा। ज़रूरी है टर्मिनल चेंज हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अब वो दो पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको जो मैंने स्टार पॉइंट किए थे। दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखो दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ पे जो हॉर्सो मैग्नेट है ना दोस्तों, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये हॉर्सो मैग्नेट ऐसे परपेंडिकुलर है इस स्टैंड से। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन ए वायर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। जो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स लग रहा है ना दोस्तों, वो परपेंडिकुलर है। किससे परपेंडिकुलर है? मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर है और डायरेक्शन ऑफ द करंट से भी परपेंडिकुलर है। ये आपको एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में तो कोई भी वन सेंटेंस के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया ना, हियर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की ओर। ठीक है, ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर is in the presence of magnetic field, a force exerted on the conductor। क्या बोला यहाँ पे? ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मैंने बताया ना नॉर्थ टू साउथ। ओके, सो करंट फ्लोइंग, इसी कारण करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। कैसे? देखो यहाँ पे डायरेक्शन नॉर्थ पोल की साउथ पोल की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में, किसके थ्रू फ्लो करेगा? करंट फ्लो किया हमने सोलोनॉइड में देखा, जब सोलोनॉइड जो स्प्रिंग से वायर था उसमें जब करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड उसकी बाजू में प्रोड्यूस हुआ, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों प्रोड्यूस हो रहा है। वो बात अलग है कि जब करंट ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो उसमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ बन रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण फोर्स एक्सर्ट होता है। किस में एक्सर्ट होगा? कंडक्टर में यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होता है। अंडरस्टूड? इस तरह फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जब भी करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर। ओके, if direction of current is reverse the direction of the force will also reverse। देखो of course अब डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे ऐसे डायरेक्शन में था, ठीक है, तो यहाँ पे कब जब करंट टॉप से बॉटम की ओर आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना? मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वायर कैसा बना? इस तरह बना। जब नीचे से ऊपर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वायर में किस तरह बनेगा? इस तरह बनेगा। मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। उसका मतलब क्या? फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? चेंज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़, इफ द मैग्नेट इज केप्ट रिवर्स्ड। अब दोस्तों देखो, मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप रिवर्स करो, दैट इज साउथ पोल इज ब्रॉट at the position of the north pole and its north pole is brought to the position of the south pole। क्या होगा दोस्तों? डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा। सो डिफ्लेक्शन विल चेंज। आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा व्हाट विल हैपन, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन विल चेंज। मैंने यहाँ पे
लिखा है। तो इफ द magnet is kept reverse, that is south pole is brought at the position of its north pole and north pole is brought at the position of the south pole. Due to this, what will happen friends? Deflection will occur and deflection will change. डिफ्लेक्शन तो हर जगह पे होगा पर चेंज होगा. सो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन दी, तो ए पॉइंट से पहले मैं ये पॉइंट की ओर आता हूँ. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट फोर्स इज एक्सर्टेड इन करंट कैरिंग कंडक्टर. कैसे करंट कैरिंग कंडक्टर में दोस्तों? जब मेरा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, वहाँ पे क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से उसमें करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है. सो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन द बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. देखो ऊपर नीचे वाला ही कंसेप्ट आ गया वापस. जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होगा वैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, और उसी तरह डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज होगा. ये इंपॉर्टेंट है स्टार पॉइंट, और यहाँ का ये पॉइंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ओके, नाउ the force is maximum when the direction of the current is perpendicular to direction of the magnetic field. ये भी पॉइंट दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको वन सेंटेंस तो फिलिंग द ब्लैंक्स में तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं. सो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. कब फोर्स मैक्सिमम होगा? जब करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा. किससे परपेंडिकुलर होगा दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा. तो एक बार रिविजन देख लेते हैं सोलेनॉइड के कंसेप्ट के ऊपर. सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विद द करंट कैरिंग सोलेनॉइड. मैंने आपको पहले बार मैग्नेट के बारे में बताया, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होता है? डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. फील्ड लाइंस कहाँ पे ज़्यादा होता है? पोल्स की तरफ ज़्यादा होता है. फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से कहाँ पास होगा? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. अब सोलेनॉइड मतलब क्या? कॉपर वायर विद रेजिस्टिव कोटिंग इज वाउंडेड इन ए चेन ऑफ लूप लाइक ए स्प्रिंग. इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड दोस्तों. अब जब इस सोलेनॉइड में बैटरी अटैच होगा और जब करंट पास होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा दोस्तों? फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होगा. और यहाँ पे बार मैग्नेट में नीडल रख दो, फील्ड लाइन ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, सो इसके प्रॉपर्टीज, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज, बार मैग्नेटिक के मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज दोस्तों दोनों क्या होता है? सेम होता है. सो ओपन एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड द अनदर एंड इज व्हाट? मैग्नेटिक साउथ पोल. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर. इंटेंसिटी दोस्तों क्या होता है? हर जगह पे सेम होता है. उसी का कारण क्या है? अगर इंटेंसिटी सेम हो तो दोस्तों क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड विल ऑल्सो यूनिफॉर्म. ओके, सो नेक्स्ट वॉज वॉट? फोर्स एक्टिंग इन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड. मैंने डायग्राम एक्सप्लेन किया है. यहाँ पे जो डायग्राम रखा है ये हॉर्सशो मैग्नेट है, ये फ्लेक्सिबल वायर है, ये बैटरी है, ये की है, और ये कॉपर फ्लेक्सिबल कॉपर वायर है, स्टैंड है, और ये हॉर्सशो मैग्नेट विद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. और यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है? यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है. कैसे जनरेट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण. और मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है? करंट जब पास होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोस्तों क्या प्रोड्यूस होता है? स्टार पॉइंट्स, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है. ओके, तो हमने वही आगे एक्सप्लेन किया है कि देखो दोस्तों ये वायर है और ये मैग्नेट है. अगर जब करंट कुछ भी नहीं पास होता है तो वायर स्ट्रेट होता है. जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये, ऐसे करंट पास होगा. जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो हमारा जो वायर है वो कैसे बेंड होता है? इस तरह बेंड हो जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग इनसाइड दी पेपर. ओके, ये पेपर है. ये सारे एक्टिविटी दोस्तों स्कूल में परफॉर्म किया जाता है. ओके, सो वेन एवर द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू ए वायर रिमेन स्ट्रेट. वेन एवर द करंट फ्लोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वायर बेंड्स एंड बिकम्स टू पोजिशन सी. एंड जब नीचे से ऊपर की जाएगा, मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो वायर इस तरह बेंड होता है. तो इस तरह हमारा क्या? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. क्यों? करंट पास होने से. वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तब क्या प्रोड्यूस हो जाता है दोस्तों? फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है. तो यही फोर्स प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर. ओके, और द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑल्सो रिवर्स. देखो करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज कर देगा, और वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन भी दोस्तों क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. तो ये पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आ गया. सो if the magnet is kept reverse, that is south pole is brought to the position of the north pole and its north pole is brought to the position of the south pole. Due to this, deflection will change. The force is maximum when direction of the current is perpendicular to the direction of the मैग्नेटिक फील्ड. कब फोर्स मैक्सिमम होगा? जब करंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा. किससे परपेंडिकुलर होगा? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा.
सो फ्रेंड, इस तरह आज हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और बाकी सारे कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे। तो होप आपको अभी तक सारे कंसेप्ट को समझ में आया है। प्लीज़ अगर समझ में आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।